Assalamu alaikum viewers. टुडे इस थर्ड लेक्चर ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आज का टॉपिक है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हम एफआईआर के नाम से जानते हैं। एफआईआर के टॉपिक को हम समझेंगे, पढ़ेंगे नोट्स के साथ, ताकि आपको भी आसानी हो एफआईआर का क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इंट्रोडक्शन। Under Section 154 of CRPC, FIR is entered in a register at the police station. An aggrieved has a right to report any criminal activity at the concerned police station and has a right to receive a stamped copy of that FIR. FIR may be reported orally or in writing. Concerned police officer has no authority to refuse to register a case. After submission of report, police starts investigation accordingly. CRPC की दफ़ा 154 के तहत FIR पुलिस स्टेशन के रजिस्टर में दर्ज की जाती है। मुतासरा शख्स को मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में किसी भी मुजुर्माना सरगर्मी की इतला देने का हक हासिल है और इसे FIR की स्टैम्प कॉपी हासिल करने का भी हक है। FIR ज़बानी या तहरीरी तौर पर रिपोर्ट की जा सकती है। मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर को मुकदमा दर्ज करने से इनकार करने का इख्तियार नहीं है। रिपोर्ट पेश करने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर देनी है। FIR के रेलिवेंट प्रोविज़न है सेक्शन 154 ऑफ CRPC डील्स विथ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। Definition of FIR. A first information report is a written complaint which is prepared by police in Pakistan when police received information about the commission of a cognizable offence. FIR एक तहरीरी शिकायत है जो पाकिस्तान में पुलिस की तरफ से इस वक्त दर्ज की जाती है जब पुलिस को काबिले समात जुर्म के बारे में मालूमात मौसूल हुई हो। मोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। Following are the two modes of information which are given by the complainant. Information देने के दो तरीके हैं। First, oral information. Information related to the commission of an offence can be given orally by the complainant to police in charge. कंप्लेनेंट किसी भी जुर्म के मुतालिक मालूमात पुलिस इंचार्ज को ज़ुबानी तौर पर दे सकता है। सेकेंड, रिटन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन रिलेटेड to the commission of an offence can be given in writing by the complainant to police in charge. Complainant किसी भी जुर्म से मुतालिक मालूमात पुलिस इंचार्ज को तहरीरी तौर पर भी दे सकता है। Essentials of FIR. Following are the essential elements of first information report. Details are as under. FIR के अहम essentials आगे दिए गए पॉइंट्स में लिखे गए हैं। First, police station. It is an essential element of FIR that it should be lodged in police station only, not in the courts of law. If it is registered in the court, it is not a FIR but law case. पुलिस स्टेशन ये FIR का एक लाजमी एलिमेंट है कि इसे सिर्फ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाना चाहिए, ना कि अदालतों में। अगर ये अदालत में दर्ज है तो ये FIR नहीं, मुकदमा है। सेकंड, कॉग्निजेबल ऑफेंस. It is an essential element of FIR that information should be related to the commission of cognizable offence, offence which is in the jurisdiction of police. Cognizable offence ये FIR का लाजमी एलिमेंट है। मालूमात का ताल्लुक काबिले सज़ा जुर्म के कमीशन से होना चाहिए और वो जुर्म अदालत के दायरा इख्तियार में हो। Third, in written.
It is another essential element of FIR that information should be written form. A police officer is under an obligation to record the information received orally in written and read it before the informant once. FIR का एक और अहम एलिमेंट है कि मालूमात तहरीरी शक्ल में होनी चाहिए। एक पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो ज़बानी तौर पर मौसूल होने वाली मालूमात को तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड करे और उसे इंफॉर्मेंट के सामने एक बार पढ़े। फोर्थ, signed by informant. It is another essential element of FIR that information recorded by the police officer should be signed by the informant. If the informant does not sign, in this case, it shall be admissible as evidence in the court. Signed by informant ये FIR का एक और लाजमी एलिमेंट है कि पुलिस ऑफिसर के ज़रिए रिकॉर्ड की गई मालूमात पर इंफॉर्मेंट की दस्तखत होनी चाहिए। अगर इत्तला देने वाला दस्तखत नहीं करता तो इस सूरत में ये अदालत में बतौर सबूत काबिल कबूल होगा। Fifth, entry in police diary. It is most important element of FIR that information taken should be entered in police diary by police officer as a record of provincial government in order to provide it in the court when it is needed. एंट्री इन पुलिस डायरी FIR का ये सबसे अहम एलिमेंट है कि ली गई मालूमात को पुलिस ऑफिसर के ज़रिए पुलिस डायरी में सूबाई हुकूमत के रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज किया जाए ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसे अदालत में फराहम किया जा सके। Quashment of FIR. FIR shall be quashed by the High Court under Section 561A if it has been lodged with malified intention of the informant. फॉलोइंग आर द केसेस। क्वॉशमेंट ऑफ FIR का मतलब है यानी कि मनसूख कर देना या रद्द कर देना या खारिज कर देना। FIR को सेक्शन 561A के तहत हाई कोर्ट के ज़रिए मनसूख कर दिया जाएगा अगर ये इंफॉर्मेंट की बदनीयती से दर्ज की गई है। किन केसेस में FIR को मनसूख कर दिया जाता है ये आगे बताए गए हैं। फर्स्ट है लॉफुल मैरिज। FIR shall be quashed by the order of High Court if it is lodged against lawful marriage of major adults. FIR को हाई कोर्ट के हुक्म से मनसूख कर दिया जाएगा अगर ये दो बालगों की हलाल शादी के खिलाफ दर्ज की गई है। सेकेंड लॉफुल बिजनेस। FIR shall be quashed by the order of High Court if it is lodged against establishment of lawful business. FIR को हाई कोर्ट के हुक्म से मनसूख कर दिया जाएगा अगर ये एक लॉफुल कारोबार के कायम करने के खिलाफ दर्ज की गई होगी। Third, insufficient evidence. FIR shall be quashed by the order of High Court if it is lodged but sufficient evidence is not available. FIR को हाई कोर्ट के हुक्म से मनसूख कर दिया जाएगा अगर ये नाकाफ़ी सबूत यानी कि अनसफिशिएंट एविडेंस पर दर्ज की गई हो। फोर्थ, पब्लिक पॉलिसी। FIR shall be quashed by the order of High Court if it is lodged against public पॉलिसी। ऐसी FIR को हाई कोर्ट के ऑर्डर से मनसूख कर दिया जाएगा जो पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़ दर्ज कराई गई हो।
In case of non-cognizable offense under section 155 of CRPC, in case of non-cognizable offense, a police officer shall record the case in Roznamcha and refer the informant to the मैजिस्ट्रेट। CRPC के सेक्शन 155 के तहत नॉन कॉग्निजेबल जुर्म की सूरत में एक पुलिस ऑफिसर रोजनामचा में मुकदमा दर्ज करेगा और इन्फॉर्मेंट को मैजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। पुलिस एफआईआर तभी दर्ज करती है जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ हो, यानी कि किसी ने किसी का खून कर दिया हो, सर फोड़ दिया हो, यानी कि सीरियस नोयत का कोई जुर्म किया हो। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, बट इन्फॉर्मेंट की इंफॉर्मेशन को रोजनामचा में रिकॉर्ड कर देती है। क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस छोटी नोयत पर होते हैं, जैसे कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी ने किसी की बेइज्जती कर दी या नाइंसाफ़ी कर दी किसी मामले में, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मामूली ऑफेंस होते हैं जिन पर पुलिस को इख्तियार नहीं है कि वो एफआईआर दर्ज करे। वो उस इन्फॉर्मेंट की इंफॉर्मेशन को रोजनामचा में रिकॉर्ड कर देती है और इन्फॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट के पास भेज देती है। फर्स्ट, इन्वेस्टिगेशन पावर ऑफ पुलिस। इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अ पुलिस ऑफिसर इज नॉट एंटाइटल्ड टू इन्वेस्टिगेट without receiving the order of investigation from the first class or second class magistrate। नॉन कॉग्निजेबल जुर्म की सूरत में एक पुलिस ऑफिसर फर्स्ट या सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट से तफ्तीश का हुक्म हासिल किए बगैर तफ्तीश का हकदार नहीं है। सेकंड, पावर्स ऑफ पुलिस आफ्टर orders of investigation। After receiving the orders from the magistrate for investigation, a police officer can exercise his all powers as he exercises his powers in cognizable cases। मैजिस्ट्रेट से तफ्तीश के अहकामात मौसूल होने के बाद एक पुलिस ऑफिसर अपने तमाम इख्तियारात वैसे ही इस्तेमाल कर सकता है जैसे वो कॉग्निजेबल केस में इस्तेमाल करता है। थर्ड, मिक्स्ड केसेस ऑफ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। इन केस ऑफ मिक्स्ड केसेस ऑफ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, अ पुलिस ऑफिसर इज इंटाइटल्ड टू इन्वेस्टिगेट without receiving the order of investigation from the फर्स्ट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। जिन केसेस में कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल जुर्म मिक्स हों, यानी कि दोनों जुर्म कमिट किए गए हों, इस सूरत में पुलिस को ये राइट है कि वो तफ्तीश शुरू कर सकती है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। Contents of FIR। Following are the contents of FIR। FIR के contents है फर्स्ट, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। एफआईआर में जुर्म करने की तारीख, वक्त और जगह लिखी जाएगी। सेकंड, डेट ऑफ लॉजिंग ऑफ एफआईआर। एफआईआर में एफआईआर दर्ज करने की तारीख लिखी जाएगी। थर्ड, पर्टिकुलर्स ऑफ इन्फॉर्मेंट। एफआईआर में इन्फॉर्मेंट की तफसीलात भी लिखी जाएंगी। फोर्थ, सिग्नेचर ऑफ इन्फॉर्मेंट। एफआईआर पर इन्फॉर्मेंट की सिग्नेचर भी कराई जाएंगी। फिफ्थ, सिग्नेचर ऑफ रिकॉर्डर ऑफ एफआईआर। जो ये एफआईआर रिकॉर्ड कर रहा है उसकी भी सिग्नेचर एफआईआर पर की जाएगी। सिक्स, पर्टिकुलर ऑफ ऑफेंडर। एफआईआर में ऑफेंडर की यानी कि मुजरिम की पूरी मालूमात लिखी जाएगी। Conclusion। To conclude, I can say that FIR plays an important role in criminal cases. A police officer is entitled to record and investigate the cognizable cases only. If case is non-cognizable, in this case, police officer shall record it on Roznamcha and refer it to magistrate.
नतीजतन मैं ये कह सकती हूँ एफआईआर फौजदारी मुकदमात में अहम किरदार अदा करती है। एक पुलिस ऑफिसर सिर्फ कॉग्निजेबल मुकदमात को रिकॉर्ड करने और तफ्तीश करने का हकदार है। इन केस अगर मुकदमा नॉन कॉग्निजेबल है तो पुलिस ऑफिसर इसे रोज़नामचा पर रिकॉर्ड करेगा और मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ताकि मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।